अभी स्टार्ट कर सकते हैं ना या थोड़ा वेट करें? सर कर लेते हैं स्टार्ट। ओके ओके सर। मैम। Can you see me? कैन यू सी मी मैम? Am I visible? हेलो। Not visible, sir. No, sir. am I visible? No, sir, you're not visible. One minute. इट्स ओके मैम। हाँ जी सर, now visible. यस। ऑल पार्टिसिपेंट हियर। हेलो। Yes, sir. ओके ओके, सो आई एम स्टार्टिंग इन विद इन 2 minutes. लेट मी। Good morning, everyone. Let me introduce first before starting. I am Soumya Ranjan Mohanty. I am from Bhubaneswar, but currently I am staying in Pune. And in this particular field, I have 5 years of experience on paper. But of the paper, I think 7 to 8 years I have been, using this stock market and all that scenario. And right now, I am considered as a SEBI's NISM smart trainer. And yeah, that's it. So now, in this lesson, we're going to know all about your world-class week, investors week, and all that BAC and the products, how investment is made, and through investment, how can we get, and what is the wealth maximization, how can our fund will be, maximized and growth also. So in this particular session, we have to see various types of investment methods. That is, how can we are going to invest in a particular segments. So let's start. Firstly, I can say it is a World Investors Week is starting from 14. That is today to 20 October. Then talk about BAC. We can say BAC. Everyone know about it. That is Bombay Stock Exchange. It is the what stock exchange of India and oldest stock exchange in entire Asia, starting from 1875. So when you are just trying for you're listing any stocks when stocks of your company, then you have to list it NSE or BSE. So BSE is one of these stock exchanges. So currently BSE is providing this seminar and what the financial advisory. So firstly, financial literacy. That means कि हमको क्या मतलब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन हमको क्या पता होना चाहिए, हमको बहुत सारे चीजों के लिए नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन इन्वेस्ट बिकॉज इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, सपोज यू आर डूइंग बीएड and after that also something. So if you don't have such particular knowledge and particular expertise in that particular segment, then how can you teach to students? So firstly, you have to have and catch some knowledge itself. So just like that, BSc also try to moderate their knowledge in the financial literacy. That means हम लोग कैसे एक को जान सकते हैं, नॉलेज को थोड़ा एक्स्ट्रा
बढ़ा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट. सो नाउ फाइनेंशियल वेल बीइंग, थ्री इंडिकेटर्स वी कैन से. डे टू डे मनी मैनेजमेंट स्किल हम लोग बोल सकते हैं, मतलब हमारा एक दिन में हम लोग कैसे हमारा फंड मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि आज के दिन में ना हम लोग खुद ही हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इसको चार्ज में. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि वेलबिंग करेंगे कि हमारा जो मनी डे टू डे लाइफ में कैसे मैनेजमेंट हो सकता है. सेकेंडली सेविंग प्लान्स, मतलब हम लोग कैसे सेव करेंगे हमारा जो भी कल है, या फिर हमारा जो बचा हुआ लेस करने के बाद जो कुछ बच गया है ना, उसको कैसे हम सेव करेंगे, अंदर किस वे में हम सेव करेंगे. तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रिपरेशन टू हैंडल इमरजेंसीज. मतलब हम लोग अभी क्या वो सेविंग क्यों करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी की टाइम में वो हमारे पास हो सके, हम लोग उसको यूटिलाइज कर सके वो फंड. इसीलिए तीन चीज बहुत जरूरी है, जैसे फाइनेंशियल वेलबिंग बोल रहा है कि पहले तो हमको मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए और डे टू डे बेसिस में हम लोग मनी मैनेजमेंट करेंगे. सेकेंडली सेविंग करना हमको चाहिए, और वो जो सेविंग करते हैं ना वो हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे कि प्रिपरेशन टू हैंडल इमरजेंसीज. तो हम अगर हमारा कुछ इमरजेंसी आ रहा है तो उसको हम लोग हैंडल करेंगे. ठीक है. एंड आई कैन से यू समथिंग गाइस कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन एट एनी मोमेंट यू कैन आस्क मी. सो मतलब उसमें कुछ बात ही नहीं है कि नहीं, answer, and also for providing some knowledge. If you have any doubt and you have any questions also, you can ask me, right? So now why financial planning? Financial planning क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारा जो फंड होता है ना, हम लोग उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे और हम लोग उसको कैसे फ्यूचरली के लिए प्लान करेंगे, वही होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग. मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया है आज के दिन में, मैं ये 100 रुपया में मैं 5 दिन या 6 दिन के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, 100 रुपया मेरा कैसे खर्चा होना चाहिए. और that is my financial planning. Suppose I am, so after that also you are becoming a professor or lecturer or teacher, etc. So उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक घर बनाना चाहिए आपको. उसके बाद आपको एक क्या बनाना चाहिए, मतलब एक कार खरीदना चाहिए. सो इट इज लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग कि आप लोग कैसे आपका जो मनी है ना वो यूज कर सकते हैं थ्रू प्लान करके. आपको फाइनेंस को यूज करेंगे. टैक्स प्लानिंग, मतलब आप आपने जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से टैक्स थोड़ा कम कटे, मतलब कटने की तो बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से करोगे तो कटेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो 80C के अंडर है जो आप आराम से कर सकते हैं. जैसे कि हमारा सिक्योरिटी मार्केट में ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम करके एक है. उसमें से आप क्या कर सकते हो कि आराम से आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो 80C में बेनिफिट आता है. उसके बाद इंश्योरेंस प्लानिंग, मतलब इंश्योरेंस में आप कौन से इंश्योरेंस करोगे, क्योंकि योर मनी शुड बी डाइवर्सिफाइड. क्योंकि क्या होता है कि आपका जो मतलब सपोज 100 रुपये आपके पास है ना, अगर आपके घर मतलब घर लोग के पास भी है, वो क्या करते हैं एक चीज में इन्वेस्ट नहीं करते. थोड़ा वो क्या करते हैं कि सेविंग में रखते हैं, थोड़ा आपका FD में रखते हैं, थोड़ा गोल्ड खरीदते हैं, थोड़ा आप वो क्या करते हैं कि कुछ और चीज करते हैं. तो इससे इसी तरह उनका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसी में भी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम लोग डाइवर्सिफिकेट करेंगे. क्योंकि हम अगर एक सेक्टर कुछ मतलब उसका मंदी चले तो दूसरे सेक्टर उसको उठा लेगा. तो इस हिसाब से इंश्योरेंस प्लानिंग ऑल्सो अनदर सेक्टर वी कैन से. देन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, just like our stocks, bonds, and what securities market we can say. So it is investment planning. फोर्थली रिटायरमेंट प्लानिंग, मतलब जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस हिसाब से मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए, और वो जो पैसा है ना मैं किस किस बेसिस में किस किस पोजीशन में मैं इन्वेस्ट करूंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिटायरमेंट प्लानिंग. मतलब रिटायरमेंट होने के बाद जो मुझे ग्रेचुइटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, एवरीथिंग आई विल गेट, ऑन व्हिच बेसिस आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट. दैट इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग. सो अनदर इज रियल इस्टेट इस्टेट प्लानिंग. सो इसमें से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रियल इस्टेट में हम जाके इन्वेस्ट करते हैं, घर खरीदते हैं या फिर कुछ प्लेसेस खरीदते हैं इसमें से, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है. उसके बाद कैश फ्लो प्लानिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग गाइस. सो हम लोग को क्या करना चाहिए कि मतलब ऐसे प्लान करना चाहिए कि हमारा 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ना वही
प्लान लेके हम लोग को इन्वेस्टमेंट आज के दिन से शुरू कर देना चाहिए। हमको फ्यूचर वी शुड बी फोरकास्टिनेशन, हम लोग को फ्यूचरिस्टिक होके इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कुछ आए, कुछ परिस्थितियां आए, इस हिसाब से हम लोग क्या कर सके, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस कर सके और हमारा ग्रोथ मैक्सिमाइज कर सके। ऑल्सो वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। सो दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। सो नाउ हाउ मच टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट इन द सेंस, देखिए सबके पास पैसा होता है, सबके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इट इज टू बी क्राइटेरियल दैट आपको ना 30, 30, 40, 50 एंड 50, 100, इट इज ऑल अबाउट दैट इज हमको कितना प्रतिशत इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एज में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इधर आप एक चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि 50% है हमारा नीड्स। नीड्स इन द सेंस बेसिक नीड्स, मतलब मेरा खाना, रहना और पहनना, मतलब जो सारे बेसिक नीड्स हमारा है उसको बोलते हैं नीड्स। उसमें से आई शुड इन्वेस्ट 50%। इट इज वाई बिकॉज माई लाइफ इज ऑल अबाउट बेसिक्स। सो अगर मुझे पहले फेज में ना बेसिक ही चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए, मतलब और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो फर्स्टली आई विल डेफिनेटली गो फॉर बेसिक। मेरा अगर बेसिक चीजें सब कुछ फुलफिल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, तो मैं उसके बाद और एक स्टेप आगे जाऊंगा, उसको बोलूंगा मैं वांट्स। वांट्स में क्या होता है कि जो हमारा जो नीड्स होता है ना, बेसिक नीड्स से थोड़ा ऊपर का स्टेज होता है। जैसे कि आपका एक मुझे घर मिल गया, अभी मैं झोपड़ी घर में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक फ्लैट चाहिए, और मैं चल के जा रहा हूँ, मुझे एक सपोज मोटरसाइकिल चाहिए, या फिर मैं कुछ खाना खा रहा हूँ ऐसे कि ब्रेड, व्हाट चावल खा रहा हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा खाना चाहिए। तो नीड्स के ऊपर अगर कुछ होता है उसको बोलते हैं वांट्स। तो वांट्स के बेसिस में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेविंग आ गया, उसके बाद जो बचा कुचा रहा उसको हम सेविंग करेंगे। सेविंग कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए एसेट एलोकेशन। सो इट इज ऑल अबाउट, इट इज हम लोग कैसे हमारा जो सेविंग है ना, डिफरेंट 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 सेगमेंट में लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हम लोग जाके उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो एसेट है प्रॉपर तरीके से एलोकेट हो पाए। मतलब वी शुड डाइवर्सिफाई आवर फंड्स। अभी हम देखेंगे कि फ्यू मोर लर्निंग में हम लोग देखेंगे कि देखिए, आपको तो सब पता है कि आप लोग में भी पढ़ के आए हैं बैलेंस शीट क्या होता है, मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। सो इट इज जस्ट लाइक कि ये हमको बोलना चाहिए कि अन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज बेस द बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब हम लोग जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उसका थोड़ा डीपली हम मतलब एक्सप्लेनेशन करें, थोड़ा नॉलेज उसके गेन करें, ताकि सपोज I am just considering about any investing in a stock market. So I should have known the best form of the companies. अगर मुझे कंपनी के हर एक चीज के लिए पता है ना, तो उसके उसके लिए मेरा देखिए मार्केट रिस्क क्या होता है मुझे पता होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या, मतलब इस साल में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, उस हिसाब से मैं डिसीजन ले पाऊंगा। उसका बैलेंस शीट क्या बोलता है, इट इज ऑल अबाउट योर व्हाट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट इज कम्स अंडर योर फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब जे कि हम लोग जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे, बट हमको बहुत सारा नॉलेज चाहिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, थ्रू विच हम लोग उधर से आराम से जाके अपना पैसा क्या करें, लगा सकते हैं। तो थोड़ा रिस्क हमको कम दे। और मार्केट रिस्क में क्या होता है, मार्केट रिस्क में आपको पता है, जैसे कि आ गया कि कौन सा सेगमेंट वाइज आ गया, मतलब डाउनफॉल चल रहा है, जैसे कि हमारा कोविड में हुआ था, तो उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट अनसर्टेनिटी केस में होता है। उसके बाद हमारा लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क मतलब यही होता है कि मतलब अभी अगर मेरे पास कितना कैश, मतलब एट द एंड, मतलब लिक्विड में मैं कन्वर्ट कर पाऊं या ना कर पाऊं वही कैश को, या फिर हमारा शेयर को, वही होता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। मतलब अभी अगर मुझे पैसा चाहिए जो मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, वो मुझे अभी के लिए, आज के लिए पैसा निकाल के दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, अगर दे पाएगा तो कितना दे पाएगा, वही होता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क, मतलब लिक्विड रिस्क। उसके बाद क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिफॉल्टर रिस्क। मतलब मैं और किसी के साथ मतलब ये करके कॉन्ट्रैक्ट किए, ताकि हम लोग थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर वो इंसान मुझे धोखा दिया, मतलब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भी मुझे मतलब क्या जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एग्रीमेंट हुआ था वो फुलफिल नहीं कर पाया, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट रिस्क, मतलब डिफॉल्ट कर दिया
मेरे केसेस को। ठीक है। उसके बाद थ्री बास्केट ऑफ मनी मैनेजमेंट, ये क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग होता है, प्रोटेक्शन प्लानिंग होता है एंड वेल्थ क्रिएशन होता है। मतलब टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि हमारा जो ग्रेचुइटी, ईपीएफ, पीएफ, ईएलएसएस, ये बेसिकली हम लोग को मतलब क्या, जब हम रिटायरमेंट लेंगे, जैसे कि एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, तो हम अगर हम रिटायर लेंगे तो उस बेसिस में टैक्स प्लानिंग हमारा क्या होना चाहिए, टैक्स किसी हिसाब से रिड्यूस हो सकता है और हम किस हिसाब से उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। और प्रोटेक्शन प्लानिंग मतलब क्या होता है कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो जिंदगी है, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे? टर्म इंश्योरेंस करके। इंश्योरेंस तो सबको पता है कि मतलब इट इज व्हाट, प्रोटेक्ट आवर लाइफ एंड प्रोटेक्ट आवर एसेट एवरीथिंग। आफ्टर दैट इमरजेंसी फंड, मेडिक्लेम। सो ये जो होता है ना, प्रोटेक्ट करेगा हमारा जिंदगी हो गया, हमारा कुछ मतलब क्या, वी कैन से करिकुलम हो गया, मतलब हमारा लाइफ के इर्द गिर्द जो कुछ प्रोटेक्शन करेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्शन प्लानिंग। वेल्थ क्रिएशन तो आपको पता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करके जो अमाउंट हम लाएंगे, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट। Why should we go for fixed deposit? Because it gives me some fixed interest. Whenever I want, after maturity, I also can withdraw. So fixed deposit nowadays also people are preferring, but still some people are what, कि लीव करके अभी थोड़ा स्टॉक्स में ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा बेटर इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस हो गया। पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि आपका हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि 8.25 का इंटरेस्ट रेट वो देता है एसएससी, तो उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेंशन, पेंशन भी आपको पता है कि पेंशन में कैसे आप कर सकते हैं। रियल इस्टेट, रियल इस्टेट मैंने बोला था कि रियल इस्टेट में क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा लगता है, क्योंकि एक फ्लैट खरीदने के लिए कम से कम आपको 40-50 लाख का चाहिए, बट इट इज वैलिड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड हो गया, आज के दिन में सारे लोग गोल्ड के लिए, तो मतलब आज के दिन में नहीं, इट वाज लाइक अर्ली टाइम दैट पीपल आल्सो went for gold investment, because for now also, and that time also people consider that gold is a safest investment। एंड इक्विटी, इक्विटी मीन्स हमारा जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट आप लोग क्या करोगे कि पैसा, आपका जो फंड होता है ना, वो दोगे कि आपका किसको, एक प्रोफेशनल मैनेजर रहता है, एएमसी, एनुअल मैनेजमेंट, सॉरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, वो आपके फंड को लेंगे और वो मैनेज करेंगे आपको फंड को, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। उसके बाद और टैक्स स्लैब सबको पता है, ओल्ड टैक्स में कितना था कि आपका जो 2.5 लाख तक था ना, वो टैक्स रेट नील था। और 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% मिलता था। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख आपको 1200, 500 या फिर 20% आप बोल सकते हैं। उसके बाद एवो 10 लाख आपको मिलता था 30%। सो इट वॉज अ ओल्ड टैक्स रेजिम। बट अभी जो टैक्स स्लैब आया, उसमें से क्या हुआ कि 2.5 से नील है, लेकिन 2.5, एक मिनट, ये जो ओल्ड टैक्स के टर्म में आप देख सकते हैं कि कितना हमको चेंज हुआ। तो 2.5 से हमारा 5%, हमारा 5 लाख से 5 लाख तक हमारा 5% का है। 5 लाख से 7.5 लाख हमारा 10% का है। और 7.5 से 10 लाख तक हमारा 15% है। और 10 लाख से 12.5 हमारा 20% है। लेकिन एवो जो हम लोग 15 जाएंगे, इसमें से कितना था, 10 लाख का था। लेकिन इसमें हो गया कि 15 लाख अगर हम जाएंगे तो 30% का हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है कि हम लोग को जो कोई पेंशन, हम लोग इन द सेंस ऑफ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, जो हमको एक लमसम अमाउंट मिलता है, ठीक है। उसमें से आपको देखिए वो पूरा डिटेल्स आपको दिया है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, ये साल तक हमको कितना रहेगा, लास्ट जॉन सैलरी, एक्स ईयर ऑफ सर्विसेज, 15 और 26। मतलब ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है आज के जमाने में, कि आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। और उसमें रूल क्या है, 5 इयर्स ऑफ सर्विस कम से कम आपको होना चाहिए। मतलब एलिजिबिलिटी शुड बी मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस, उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए आप, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रेचुइटी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ईपीएफ। ईपीएफ तो पता है आपको, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब वो क्या होता है कि हर कोई कंपनी में एम्प्लॉय चाहता है कि भाई मेरा जो सॉरी एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है, आफ्टर रिटायरमेंट हो गया, कि मेरे मतलब क्या, काम छोड़ने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो बहुत
कुछ मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के लिए या फिर कंपनी के लिए वो किया है, तो इसीलिए हम लोग उसको एक ऐसे बेनिफिट देंगे कि आफ्टर पेंशन ऑल्सो ही कैन एंजॉय। सो फर्स्टली इक्वल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयर भी उतना कंट्रीब्यूट करेगा आपका ईपीएफ। इन गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड योर एसपीएफ ऑल्सो, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बट ईपीएफ इज योर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑफर ऑन द एक्यूमुलेटेड फंड। उसके बाद क्या होता है, अमाउंट कैन बी विथड्रॉन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप बीच बीच में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब कर दिया तो रिटायरमेंट के बाद आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। इट इज नॉट मैंडेटरी, आप आराम से विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद आइडियल रिक्वायरमेंट फंड, मतलब आप किसी भी सेक्टर में वो पैसा भी लेके क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें से टैक्स डिडक्शन होता नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका ईपीएफ। तो अभी आपका आ गया ईएलएसएस। जैसे कि मैं आपको बोला था, ईएलएसएस स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखिए, आपको पता होगा कि हमारा जो कैपिटल गेन है उसमें से 10% का आ गया लॉन्ग टर्म एलटीसीजी में। तो उसमें से क्या होता है कि ईएलएसएस में आप वन टाइप ऑफ टैक्स सेविंग फंड होता है, एक म्यूचुअल फंड टाइप का। उसमें से क्या होता है, आपको 80 सी के अंडर डिडक्शन मिलता है। आप अगर स्टॉक्स मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे थ्रू म्यूचुअल फंड, यू कैन ऑल्सो स्टिल गेट सम बट टैक्स थ्रू ईएलएसएस। इसमें से देखिए आपका कंपैरिजन दिखा देता है कि मतलब कौन से फील्ड में आपको होना चाहिए। ईएलएसएस क्यों लिया, क्योंकि वो टैक्स सेविंग है। ठीक है, पीपीएफ अगर आप 15 साल करोगे, इफ इन्वेस्टेड फॉर ईयर 1,50,000, परसेंटेज ऑफ रिटर्न 8%, दैट विल गिव्स यू 44 lakhs। बट ईएलएसएस अगर आप करोगे 15 साल का, और आपका कितना 1.5 लाख का, वही 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, बट इट विल गिव यू 18%, दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न। सो आप गिन सकते हैं कितना आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ईएलएसएस। आप लोग भी कंसिडर कर सकते हो, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद भी किया हूँ। ठीक है, उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस क्या होता है। एनपीएस ये होता है कि जो आपका जो अभी अभी मतलब 2004 में बोल सकता हूँ कि उससे पहले जो एम्प्लॉय हुए हैं, तो उसमें से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। उसको क्या करते हैं कि वो प्रोवाइड करता है कि हम लोग के बेनिफिट है, बेनिफिट के लिए। तो इंडिविजुअल पहले से तो आपको ओपन करना पड़ेगा एनपीएस अकाउंट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, चूज ए सुइटेबल एसेट एलोकेशन, मतलब एसेट को कैसे कैसे टाइम में एलोकेट करूं उसको आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू एनपीएस, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या अभी क्या क्या सीन है कि हम लोग थोड़ा ऐसे मतलब दिन में आ गए हैं। पैसा तो सबके पास है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम लोग अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहे, वही दिक्कत है हमारे लिए। अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको क्या पेंशन का आ ही जाएगा। और आपको एन्युटी प्लान के लिए भी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एन्युटी प्लान मतलब क्या होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगा, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज आफ्टर आफ्टर सर्टेन टीन्यूर और मैच्योरिटी, द कंपनी विल ऑल्सो गेट मी द अमाउंट, सच फिक्स्ड अमाउंट। वो बोलते हैं हम एन्युटी। लमसम आपका 60% आएगा और एन्युटी आपका 40% आएगा आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब अगर आपने एनपीएस स्टार्ट किए, उसके बाद आप रिटायर हो गए, सपोज आपके पास एनपीएस के कुल मिला के आपके पास हो गया कितना 50 लाख, तो आपका लमसम मतलब मतलब 30 लाख आपको आज के दिन में आ जाएगा। लेकिन बाकी जो बचा है 40 लाख, सॉरी 20 लाख, वो आपको एन्युटी बेसिस में देगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपको पता है, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे, मुझे लगता है सबसे अच्छा स्कीम है, क्योंकि इंश्योरेंस में हम लोग जो करते हैं ना, सिर्फ हमारा मतलब इस फील्ड में जान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से देखिए आपके अगर आप 30 एज तक हो, तो आपको ईयरली प्रीमियम देना पड़ेगा 15,766, और मंथली प्रीमियम कितना देना पड़ेगा 1,213, और डेली प्रीमियम 40। मतलब देखिए हम लोग 30 में हैं, मतलब हमारा चांसेस है ज्यादा जीने के लिए। मतलब अनसर्टेनिटी कैन बी हैपन, बट नाउ वी आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेज दैट हमको लगता है कि मतलब सबको लगता है हम लोग ज्यादा जिएंगे एज कम्पेयर टू 60 years। दैट्स वाई हम लोग को कम भरना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास ज्यादा टाइम है भरने के लिए फंड। बट इन द केस ऑफ देखिए 40 50 60, वो जो अमाउंट है ना थोड़ा बढ़ता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
50 लाख भरपाई करने के लिए ना उसको भी वो क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये लोग थोड़ा कम टाइम के लिए है। जैसे कि 30 साल का जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव करेगा कंपेयर टू 60 साल। सो इसीलिए उनको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस अगर आपके दिमाग में है करने के लिए, सो यू शुड गो फॉर रिसेंट टाइम। अगर मतलब 30 साल के अंदर अंदर आप कर देना चाहिए, मतलब 30 साल में करना चाहिए ताकि आपको कम प्रीमियम पड़े। उसके बाद आपको मेडिक्लेम हो गया। देखिए मेडिक्लेम, मेडिक्लेम में क्या होता है कि आपको, जैसे कि आपका कुछ डिजीज हुआ है और आपका कुछ मतलब क्या कुछ आने वाले समय में प्रॉब्लम मतलब होने का चांस है, तो आप मेडिक्लेम ले सकते हो। उसमें से क्या होता है, वही सिर्फ देखिए 30 से 60 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, वही आपका जो रेट है, जो ईयरली प्रीमियम है ना, वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि वो जो आपका जो अनसर्टेनिटी है वो 30 साल में थोड़ा कम है, लेकिन 60 साल में थोड़ा ज्यादा है। और एवरेज डेथ जो हम लोग मानते हैं, डेथ स्टोन, वो 65 का इंडिया का हो चुका है। मतलब 65 से 70 ईयर तक लोग मतलब मर जा रहे हैं। तो इसीलिए उस वो हम लोग अगर प्लान करें, तो 30 साल में अगर प्लान करें तो हम लोग का क्या होगा, थोड़ा कम प्रीमियम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 60। तो उसके बाद कैंसर इंश्योरेंस भी है। कैंसर आपको पता है, मतलब नाउ ए डेज ऑल्सो इट इज अ बिगेस्ट फॉर डिजीज इन इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड ऑल्सो। तो इस हिसाब से हम लोग क्या ईयरली प्रीमियम देके उसको भी बुक कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम आए कैंसर रिलेटेड, सो वी कैन ऑल्सो गेट सम बेनिफिट। और बेनिफिट कितने तो होगा, 25 लाख। मतलब अगर हम भर रहे हैं अभी, सपोज 30 साल मेरा हो गया, मैं भर रहा हूँ, सपोज 32 या 33, इवन 40 साल या 50 साल, कभी भी मुझे अगर बीमारी पाया गया कि मुझे कैंसर हुआ है, सो दैट कैंसर प्रीमियम जो मैं भरा था ना, वो मुझे 25 लाख तक मैं क्लेम कर सकता हूँ। अगर नहीं हुआ तो कुछ फायदा नहीं है, मतलब मेरा गया, लेकिन 25 लाख लाख तक मैं क्लेम कर सकता हूँ। जो भी अस्पताल में मैं रुकूंगा, कुछ भी करूंगा मैं, तो उसमें से मेरा कितना 25 लाख तक रिकवर हो सकता है। तो अभी क्रिटिकल इलनेस मेडिक्लेम, इट इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ डिजीज एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि मंथली प्रीमियम कितना होता है, ईयरली प्रीमियम कितना होता है। एंड क्रिटिकल कंडीशन में ये देखिए सब आता है कि आपको मतलब कौन सी टाइप का बीमारी है, और उस हिसाब से आपको 10 लाख तक भरपाई मिलेगा। सो इट इज नॉट कंसिडरेबल दैट यू आर 30 years or 60 years, what years you are right now, but you are still getting 10 lakhs। अभी टोटल हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए हम सोचे, मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सेंस जो हमारा सेगमेंट पढ़े थे। पहला हो गया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपको पता है, financial instrument provided by banks and NBFC which provides investors a higher rate of interest than a regular saving account until the given maturity date। मतलब हम लोग जो बैंक में जाके पैसा रखते हैं, उसमें क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में रहता है वो, मतलब क्या 3 से 3.5% तक हमको मिलता है। बट द बेनिफिट ऑफ सेविंग अकाउंट दैट whenever we want we can withdraw our money, but in case of fixed deposit we have to what deposit for a certain period of time। सो अभी मैं आपको मेरा स्टोरी बताता हूँ। अभी मेरी मम्मी का रिटायरमेंट हुआ है, तो उनके जो पैसा मिला है ना, तो वो बोले फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। तो मैं क्या किया कि एफडी को, मैं सपोज 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना है, 10 लाख को मैं 1 लाख करके 10 फंड में किया, और मैं फिक्स डिपॉजिट किया। क्योंकि अगर कुछ चाहिए होगा, मतलब पैसा मतलब क्या अभी मुझे चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 10 लाख एक ही अमाउंट में करूं और उसको तोड़ना पड़े, तो मुझे क्या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 लाख का 10 करूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 2-3 लाख का 2-3 एफडी में तोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मेरा जो बाकी का 7 लाख है वो तो एफडी में रहेगा। वही है। और रिटर्न्स, इसका क्या रिटर्न्स है, मतलब 6.5 से 7, और सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा 8.25 या 8.5 तक देता है। और आपका जो ये होता है क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 9.10 9.25 तक वो देते हैं। ठीक है। तो उसका रहता है इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ मिनिमम 7 days to 10 years तक आप रख सकते हैं।
उसके बाद सेविंग स्कीम इन पोस्ट ऑफिस में अब आजकल लोग बहुत यूज कर मतलब क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट फंड को, पीपीएफ कर रहे हैं। नेशनल सेविंग स्कीम मैंने जो आपको मतलब क्या बोला था इससे पहले कि नेशनल सेविंग स्कीम भी कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये बहुत अच्छी स्कीम होता है, वन टाइप ऑफ दैट विल गिव यू 8.25% ऑफ इंटरेस्ट, एंड इट द इंटरेस्ट विल कम यू ऑल क्वार्टरली बेसिस। मतलब 3 महीने में ना आपको इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें से। मतलब आपको 1 साल तक वेट करना नहीं चाहिए, मतलब नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद फार्मर प्रोग्रेस के लिए किसान विकास पात्र करके एक स्कीम है, वो फार्मर्स के लिए वो लोन फोन देता है, उसमें भी आप कर सकते हो, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। गर्ल मैरिज एंड एजुकेशन सुकन्या समृद्धि, ये भी तो आपको पता है, मतलब 7 साल के बाद आप आराम से क्या कर सकते हो, मतलब अगर आपका कुछ मतलब बेटी हुई है उसके लिए। तो वही सब होता है जो आपका जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है ये सब स्कीम्स। उसके बाद आ गया हमारा पेंशन प्लान। मतलब पेंशन में हम लोग अगर टर्म पॉलिसी टर्म लाइफ कवर इतना अगर करेंगे तो हम लोग कितना 8% हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। तो उसमें से हम अगर इतना पैसा रखेंगे, मतलब मंथली पेंशन इफ वी आर इन्वेस्टिंग 12,581, देन हमको कितना पड़ेगा। तो इस देखिए मैच्योरिटी अमाउंट लाइफ कवर सब कुछ लिखा हुआ है इसमें से। तो अगर मैं लाइफ कवरेज 6 लाख के लिए मैं देख रहा हूँ, मैच्योरिटी मेरा हो जाएगा 18,87,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के हिसाब से मंथली पे, लेकिन मुझे करना पड़ेगा 5,000। और पॉलिसी टर्म 20, 10,000 के लिए अलग है, 12 लाख मुझे लाइफ कवर का एश्योरेंस वो मिलता है, और मैच्योरिटी अमाउंट मेरा 37 लाख तक हो जाएगा। इस हिसाब से 15 लाख का देखा जाए तो 18 लाख मेरा 15,000 का 18 लाख मेरा हो सकता है लाइफ कवरेज, और मेरा 56 लाख तक मुझे मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। और 20,000 का मेरा 24 लाख एंड 75 लाख। अभी देखिए रियल एस्टेट पहला गया मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट गया। दूसरा मेरा गया क्या कि रियल मतलब क्या वो जो पहले पेंशन एंड रिटायरमेंट का वो भी गया, पेंशन प्लान। उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम है कि यू हैव maximum funds, you have huge funds for investing, otherwise you can't what you can't invest anything, because एक एक फ्लैट तो 50-60 लाख तक आ जाता है, और अगर आप जगह भी खरीदेगी तो बहुत पैसा जाएगा। So if you have such kinds of money and you belongs to such family and relatives, then you can also invest in real estate in investment। और आजकल तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी आप क्या कर सकते हो, मतलब थोड़ा लोन फोन लेके भी कर सकते हो, बट इट्स ओके। रियल एस्टेट ऑल्सो इज कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। गोल्ड में इट इज नॉट लाइक कि 2 days onwards peoples are investing in gold। there was a day that is I think 16th 17th century से भी लोग गोल्ड से थोड़ा मतलब क्या इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर एज द इंडियंस मोस्ट what lovable world's most lovable and what we can say लग्जरी मेटल्स। सो गोल्ड में हम मतलब हर कोई इन्वेस्ट करता है। उसमें से क्या होता है फिजिकल, देखिए कितने तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग पहले फिजिकली टर्म्स पे गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, और जैसे कि हम लोग क्या ऑर्नामेंट्स के इसमें से रख सकते हैं। उसके बाद हम गोल्ड का बिस्किट खरीद सकते हैं या गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं। उसके बाद प्रीफर इन्वेस्टमेंट थ्रू गोल्ड ईटीएफ। ये क्या ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, मतलब जहां पे एक्सचेंज आ जाता है ना, एक्सचेंज इन द सेंस जो मतलब क्या जिसमें से ट्रेड होता है, जिस एक्सचेंज में जाके ट्रेड होता है। तो गोल्ड भी ट्रेड होता है थ्रू कमोडिटी दैट इज एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स में। इसमें से क्या होता है कि गोल्ड को आप खरीद सकते हो, जब उसका पैसा बढ़ेगा तो बेच सकते हो। सो इट इज जस्ट लाइक अ कमोडिटी ट्रेडिंग। उसके बाद हाई लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन बीटिंग कैपेसिटी कैन बी इजीली लिक्विडेटेड इन क्राइसिस। मतलब क्या होता है गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट हमारा क्रैश होगा ना, तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाएगा, मतलब गोल्ड का भाव भी बढ़ेगा। सो इट इज जस्ट लाइक व्हाट रिवर्स प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। सो इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम आता है तो गोल्ड हमको सफर से बचा सकता है। उसके बाद इक्विटी, दैट इज द मेन थिंग्स बिगिन। इक्विटी व्हाट इज इक्विटी, वी कैन से इट इज व्हाट ए कंपनी इज वर्थ। मतलब इक्विटी इन द सेंस मेरा जो कंपनी का ओथ होता है,
तो उसको अगर मैं पीस पीस करके मैं किसी को दूंगा ओनरशिप के तरीके से, और उसका पैसा लाऊंगा मैं, उसको बोलते हैं इक्विटी। सो इक्विटी, एज आई सेड, इट इज अ काइंड ऑफ ओनरशिप टू द company of the company. Equity what ownership, what is owned, debt what is owed. मतलब equity is considered as our asset and debt is considered as our liabilities. So stocks में हम मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इक्विटीज के थ्रू से, उसके बाद रियल एस्टेट, उसके बाद बिजनेस। इसमें देखिए आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, इसमें लिखा है कि पीस ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, मतलब मैंने जो आपको बोला छोटा छोटा टुकड़े का जो ओनरशिप होता है ना, जो मिला के पूरा ओनरशिप होता है, उसको बोलते हैं हम इक्विटी। सपोज 100, मतलब क्या, 100 रुपया का उसके पास ओनरशिप है, तो इक्विटी में भी 1 रुपया हो सकता है एक इक्विटी, या फिर मतलब थोड़ा 0.5 भी हो सकते हैं, 0.10 भी हो सकता है। सो इतना सा जाता है ताकि हम लोग क्या करते हैं, अगर कंपनी को लगता है कि मेरे पास फंड का जरूरत है, लेकिन फंड कैसे मुझे मिलेगा, तो अगर मैं कंपनी का ओनरशिप किसी को दूंगा, पब्लिक को दूंगा, देन आई कैन व्हाट इजिली गेट फंड थ्रू माई इक्विटी। सो इन दैट पर्टिकुलर केस कंपनी इज लिस्टेड एंड व्हाट पब्लिक से वो पैसा उठाता है, उसके बाद वो इन्वेस्ट करता है, मतलब अपने आप में इन्वेस्ट करता है, और उसका जो शेयर है वो लिस्टेड हो जाता है थ्रू एनएससी एंड बीएसई। उसके बाद साइकिल ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें देखिए डेवलपिंग एंड डेवलप, मतलब वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से डेवलपिंग कंट्री कहाँ पे है, डेवलप्ड कंट्री कहाँ पे है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था, उसके बाद बबल बर्स्ट हो गया, क्राइसिस रबल हो गया, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। सो उनमें से कंपैरिजन डेटा दिखा है परसेंटेज के हिसाब से, वी कैन कंपेयर एंड वी कैन व्हाट say that on which basis developing and developed two are competing to each other. You can see, have a look in this particular diagram. So now why India? मतलब वो जो होता है कि हमारा जो पहली स्लाइड्स में हम पढ़े कि वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ में क्या क्या, मतलब डेवलपिंग डेवलप्ड का क्या कंपटीशन होता है, या क्या उन लोग के मतलब क्या रिलेशन होता है। इसमें से इंडिया को हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सपैंडिंग इकोनॉमी टू प्रोफाइल ग्रोथ इन लोकल डिमांड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट फॉर न्यू वर्टिकल्स। मतलब इंडिया को हम अभी एक इकोनॉमी हब के लिए क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो ग्रोइंग डिमांड, मतलब इसमें से जो प्रोडक्ट हो रहा है ना, और जो कंपनी आ रही है, और जो लोग हैं, उनका डिमांड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वी कैन से। तो अगर हमारे पास ज्यादा पॉपुल मतलब लोग हैं, तो लोग तो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा मतलब क्या पहनना पसंद करेंगे, थोड़ा क्लास हो गया। सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री आर कमिंग, एंड आल्सो वी आर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आल्सो वेरियस वेरियस टाइप्स, बिकॉज हमारा बंगाल का लोग, और मतलब क्या साउथ साउथ साइड का लोग, या नॉर्थ साइड का लोग, या फिर हमारा वेस्ट साइड का लोग, तो उनका बहुत सारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। तो इसीलिए उन लोग, और तो इसीलिए क्या होता है कि ग्रोइंग डिमांड बहुत सारे चीजों में होता है। उसके बाद ग्लोबल फुटप्रिंट, इंडियन आईटी फर्म्स ऑफ डिलीवरी centers across the world and are well diversified across verticals such as BFSI, telecom and retail। मतलब आईटी कंपनी, मतलब देखिए आप बेंगलोर देख लीजिए, पुणे देख लीजिए, इसमें आईटी फर्म्स मच हैव डिलीवर्ड, एंड वो इन लोग थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा जो सेक्टर हो वो बहुत ज्यादा तरीके से अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंपिटेटिव एडवांटेजेस में क्या होता है, जैसे कि आपका माइती हो गया लॉन्च से, माइती स्टार्टअप ऑफ पोर्टल इन मई 2019, आईटी सेक्टर। वही मतलब आईटी सेक्टर का इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मतलब सारे लोग आके इधर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जो बना रहे हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके लिए बहुत डिमांड हो रहा है। सो इसीलिए इंडिया को ग्रोइंग सेक्टर के लिए सोचा जा रहा है। पॉलिसी सपोर्ट भी एग्जाम्पल अप टू 3 years of block of 7 years to startups under startup India। तो इंडिया का जो स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू हुआ था, अभी क्या हुआ है, सारे लोग अपना जो आइडिया है, आइडिया जनरेशन है, वो लेके आराम से क्या फॉर खुद को मिल जाएगा, वो आराम से आपका स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। सो वो भी एक मतलब क्या, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हमारा जो आइडिया है बहुत मतलब रियली कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी बहुत अच्छा है।
तो लोगों को सपोर्ट करने से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा आने वाले कल में। और लोग डिपेंडेबल ज्यादा नहीं होगी कि अपना जो आइडिया है, मैं तो ये आइडिया डेवलप करूंगा, मैं आराम से कंपनी एक फॉर्म करूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा क्योंकि आइडिया मेरी है। तो उसके बाद क्या होगा कि मैं खुद एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तो मैं किसी का एम्प्लॉयमेंट क्यों रहूंगा। एक सोच बढ़ गया है इंडिया में। तो व्हाई इट इज कंसिडर एज द इंडिया इज द आने वाले कल में बिगेस्ट इकोनॉमी होगा पूरा ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद रिटर्न ऑन वेरियस एसेट क्लास। अभी देखिए हमारा जो कैटेगरी है 10 20 30 गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, मल्टी कैप, रियल एस्टेट। मतलब गोल्ड का 10 ईयर्स का मतलब इंटरेस्ट है आपका 9.8%, 20 ईयर्स का 10.4% एंड 30 ईयर्स का 7.9%। लेकिन फिक्स डिपॉजिट का देखिए 6.5 इट इज। और आप शेयर्स का देखिए 27%। मतलब लास्ट 10 साल में अगर आप कोई भी शेयर में लगाए हो पैसा, अगर 100 रुपये लगाए हो तो 27% आपको रिटर्न वो दे रहा है। और आपको क्या चाहिए। तो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में अगर करो तो 4 टाइम्स हायर। सो इट इज वेल एंड गुड। वी कैन ऑल्सो बट इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड मल्टी कैप। इक्विटी में भी 11%, 13%, 15% है। रियल एस्टेट में भी आपका 10% का है। सो एफडी का थोड़ा मतलब अच्छी खासी रिटर्न नहीं है। बट शेयर्स हो गया और फिर आपका मल्टी कैप हो गया, रियल एस्टेट, इवन गोल्ड ऑल्सो, मतलब लगभग आपका एवरेज टू एवरेज 10% का मिनिमम वो इंटरेस्ट दे रहे हैं लोग। नाउ द कंसेप्ट हैज कल आईपीओ। आईपीओ आपको पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी न्यू आती है तो आईपीओ लॉन्च करती है ताकि वो जो क्या लोगों से अपना पैसा ले सके और अपना ओनरशिप लोगों को दे सके, वो होता है आईपीओ। सो पहले जो फेज आता है उसको बोलते हैं आईपीओ, जब कंपनी एस्टेब्लिश होके लिस्टेड होने के लिए चाहती है। तो प्राइमरी मार्केट एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, वो जो मैं बोला कि प्राइमरी मार्केट उसको बोलते हैं कि जो कंपनी चाहती है कि पहली बार में लिस्टेड होऊंगा एनएससी और बीएससी में जाके, ताकि मेरे शेयर्स में लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। उसके बाद हमारा आया है देखिए आ, क्या है न्यू इश्यू मार्केट वेयर कंपनी इंस्टीट्यूट रेज फंड। मतलब कंपनी क्या करती है, रेज फंड करती है कैपिटल। उसको पैसा चाहिए, वो किससे लेगी, हमारे हमसे लेगी। और हम लोग को क्या चाहिए, मतलब क्या उसका आईपीओ चाहिए। तो आईपीओ लेने के बाद ना ओरिजिनल जो ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, वो शुरू हो जाता है एक बार आईपीओ आ जाने के बाद। सो मेजर टाइप्स ऑफ इश्यू इन प्राइमरी मार्केट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इश्यू वी कैन से: पब्लिक, प्रेफरेंशियल, राइट इश्यू एंड बोनस इशू। पब्लिक इशू मतलब बहुत मतलब वो जो कंपनी किसी को सबके लिए ओपन करता है अपना प्लेटफॉर्म, सबके लिए, मतलब कोई भी लोग आए ना, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो मेरे कंपनी में, वो होता है पब्लिक इशू। प्रेफरेंशियल इशू मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए वो प्रायोरिटाइज रखता है कि इन लोग तुम ही खरीद सकते हो, और सब लोग के लिए वो ओपन नहीं रखता, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल इशू। राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब अगर मैं एक कंपनी का शेयर में खरीदा हूँ, सपोज एसबीआई अभी चल रहा है 820 या 830, मैं उसका शेयर खरीद के बहुत पहले से रखा हूँ। तो अभी अगर राइट इशू देगा तो मुझे वो मिलेगा एसबीआई, क्योंकि मैं उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हूँ। उसके बाद बोनस इशू मतलब वो जो कंपनी, वो जो शेयर होता है, खुद का जो शेयर होता है, और मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और बहुत सारे शेयर को बोनस के फॉर्म में देता है, उसको बोलते हैं बोनस इशू। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वी कैन से मार्केट वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड। मनी मार्केट में क्या होता है, जो हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं मनी मार्केट। द डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ द short term needs are met, we can say here is the platform of money market. But in case of capital market, when we are prioritize the security, मतलब हम लोग अगर सिक्योरिटीज एंड क्या स्टॉक्स के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं, देन वी शुड प्रिफर फॉर कैपिटल मार्केट। उसमें से सिक्योरिटी मार्केट आता है, उसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, एलओबी फॉर्म भी आता है, ठीक है। और सिक्योरिटी मार्केट में जैसे भी बताया आईपीओ होता है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। उसके बाद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशनड यू फर्स्ट टाइम।
इशू होता है इसमें, लेकिन लिस्टेड सिक्योरिटी को होता है। ऑल्सो कॉल्ड एज द इशू मार्केट, इट इज कॉल्ड पोस्ट इशू मार्केट। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस इशू कंपनी इन कंसल्टेंट मर्चेंट बैंकर, जब वो डिटरमाइन होता है ना प्राइस, तो मर्चेंट बैंकर मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर आके कंपनी के साथ बात करके वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। लेकिन इसमें से सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड फोर्स ऑफ मार्केट, मतलब डिमांड और सप्लाई का जो गेम रहता है ना, वो अपना प्राइस मैटर करता है। अगर आपके कंपनी का शेयर ज्यादातर लोग खरीदे तो आपका ही प्राइस ऊपर जाएगा। अगर बेच रहे हैं इसका मतलब क्या, आपका प्राइस नेगेटिव जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। और की इंटरमीडियरीज मतलब मर्चेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर्स, आरटीए, ये आरटीए मतलब रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। मर्चेंट बैंकर्स जैसे मैं बोला आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। लीड मैनेजर वो सब क्या करते हैं, आपका जो आईपीओ होता है उसको फॉर्म करते हैं और उसका एक डिजाइन बनाते हैं, कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा आएगा, उसमें से कितना सब्सक्राइब होगा, वो सब इंटरमीडियरीज करते हैं। लेकिन वो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स ब्रोकर्स एंड डीपी, सो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड स्टॉक ब्रोकर मतलब जिस फार्म में आप डीमैट अकाउंट खोल के आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। वो और डीपी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट वो दोनों आपको क्या करते हैं, इंटरमीडिएट्स के टर्म में रहते हैं। उसके बाद पर्पस क्या होता है प्राइमरी मार्केट में, रेस कैपिटल, जैसे कि मैंने बोला अभी डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। एंड इसमें से क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स, मतलब सिक्योरिटी ट्रेड होता है और लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर को कुछ लिक्विडिटी मिलता है इसमें से, और रेजिंग फर्दर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। और एक बार जो हमको बोलते हैं, एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। एफपीओ मतलब फॉलोअन पब्लिक ऑफर। उसमें से क्या होता है कि अगर कंपनी को फंड की जरूरत है वो सेकेंड टाइम भी आईपीओ जैसा इशू करता है, कर सकता है। ठीक है। अभी देखिए मोड्स ऑफ इशू, जैसे मैंने ये सब डिस्कस किया है, इशू क्या होता है। लिस्टिंग इनटू ऑन एक्सचेंजेस, बट जो कंपनी होता है ना उसका ओनरशिप किसी को देता है और उससे डायरेक्ट पैसा उठाता है। स्पेशली वी कैन से एंजल इन्वेस्टर्स, इन लोग सब क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट फंड देते हैं, जैसे कि शार्क टैंक हो गया। उसमें से क्या होता है, उनके ओनरशिप वो ले ही लेते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें से हमारा होता है प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल इशू मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जिसको, जैसे रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ मतलब व्यक्ति हो सकते हैं, उनको हम प्रेफरेंशियल इशू बोलेंगे। लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट मतलब एक कंपनी के तरीके से होगा, इंस्टीट्यूशंस, उसमें से जाके हम क्या करेंगे, उसको पैसा ओनरशिप देके अपनी कंपनी का उससे पैसा हम लेंगे। तो आईपीओ एफपीओ मैंने आपको बोला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये एफपीओ हो गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों से कलेक्टिवली वो कलेक्ट करता है फंड, और फंड मैनेजर एक रहता है एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपके फंड को वो क्या करता है, मैनेज करता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अभी देखिए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वन इज अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म्स गोल्स, लिक्विड फंड, डेट फंड एंड हाइब्रिड फंड। सो पहला होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या होता है, जिस म्यूचुअल फंड में ना सिर्फ इक्विटी सेगमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होगा उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसके बाद डेट मतलब डेट एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर हमको डेट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है उसको हम बोलेंगे क्या, डेट डेट फंड। उसके बाद हमारा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में सब कुछ मिला के होता है, जैसे कि इक्विटी में कुछ रहेगा, डेट में कुछ रहेगा। देखिए व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एसआईपी और एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, सॉरी लमसम। लमसम में क्या होता है, आप कुछ लमसम अमाउंट दे दिए किसको, आपके एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिए, और आप बोले कि आप उसको इन्वेस्ट कर लीजिए। बट एसआईपी में क्या होता है, आप एक टाइम में नहीं दे के एक महीने में कुछ पीरियडिकली आप कुछ पैसा दिए, मतलब इट कैन बी, इट स्टार्ट फ्रॉम 500 रुपीज, एंड आप लोग 2000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, राइट। सो इन्वेस्टिंग फिक्स्ड अमाउंट एट पीरियडिकल इंटरवल्स, व्हाट आई एम सेइंग, हेल्प्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वोलेटिलिटी, क्योंकि वोलेटिलिटी जो मार्केट का होता है ना,
उसमें वो रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ वोलेटिलिटी। म्यूचुअल फंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो ऑफिसर रहते हैं या मैनेजर रहते हैं ना, वो आपको मैनेज करते हैं। उसके बाद रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो गया, स्मॉल एंड पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। मतलब बहुत बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट है, 1,000 से भी आप स्टार्ट करते हैं, आपको नहीं लगेगा कुछ बर्डन जैसा नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और सिंपल एंड क्विक, बहुत आसान तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शंस, देखिए बैंक हो गया, एसआईपी सिस्टम, एसआईपी हो गया आपका, 1 मिनट, एंड उसके बाद आपका लिक्विड फंड हो गया, एसटीपी, इक्विटी फंड, एसडब्ल्यूपी। मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक हो गया। उसके बाद एसटीपी मतलब ट्रांसफर प्लान हो गया। उसके बाद विड्रॉल ट्रांसफर मतलब अगर आपके पास 3-4 म्यूचुअल फंड है, आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी क्या हो गया? स्विच, अगर आपको बंद कर दिया एक म्यूचुअल फंड को, फिर आप ना निकाल के आप क्या करेंगे, उसमें से आपको फंड रहने देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप क्या करेंगे, उसमें से भी आपका इंटरेस्ट ऐड होगा, और आप ऐसे करेंगे कि मुझे एक टाइम में ना देख के थोड़ा एक महीने में मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए, सॉरी मंथली टेन्योर के लिए तू मुझे प्रोवाइड कर। ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग पावरिंग, ये मैं बोला था आपको, जैसे कि बीच बीच का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो बढ़ते जा रहा है। हालांकि नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों का ही बढ़ता जाता है। हाउ टू गेट वेल्दी, दैट इज योर अर्न सेव एंड स्पेंड। आप कितना अर्न करते हो, इस हिसाब से कितना स्पेंड करते हो, और इस हिसाब से कितना सेव करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आप सिर्फ अर्न करते रहोगे, अगर क्या सेविंग नहीं कर पाओगे, तो आपका थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड होते हैं। वी एडवाइस इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्वेस्टर्स आर कॉन्सेंट इन्वेस्ट ओनली विद सेबी रजिस्टर्ड। मतलब जो म्यूचुअल फंड सेबी से रजिस्टर्ड है ना, उसमें से ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें से आपका जो रिस्क होता है डिफॉल्टर हो गया और वगैरह, क्योंकि सेबी इज कंसिडर एज द व्हाट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सो सेबी के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करते हैं। सो पहले आपको ये चाहिए कि केवाईसी चाहिए, नो योर कस्टमर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, और स्टेप्स टू कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एंड उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा कि क्या क्या म्यूचुअल फंड आप अकाउंट खोलने के बाद आपको कर पाओगे। ठीक है। दो तरीके से होता है मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग, फिजिकल मोड्स एंड ऑनलाइन मोड्स। फिजिकल आपको पता है, मतलब क्या करेंगे, सब साइन करना पड़ेगा आप थोड़ा। उसके बाद ऑनलाइन में आपको डायरेक्ट ऑनलाइन टू ऑनलाइन आपको इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको हाउ टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड स्कीम, ये भी देखिए, ऑफलाइन है ऑनलाइन है। ऑनलाइन में क्या करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन में वेबसाइट में जाके डायरेक्ट आप रजिस्टर करके इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी बुला के आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप एनएससी बाय कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, यूनिट प्रो, एनएससी, बीएससी, इसमें से आप कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या आपको करना पड़ेगा कि साइन करना पड़ेगा पहले, आपके बहुत मतलब पेपर टाइप का होगा। उसमें साइन करने के बाद ना आपका चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब आ जाएगा। उसमें साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑफलाइन मोड में खोलेगा। हाउ टू विड्रॉल योर मनी, विड्रॉ आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि आप ऑफलाइन मोड में आप क्या करना पड़ेगा कि आपको जिसमें से आप खोले थे ना, उसके ऑफिस जाके उसको विड्रॉल फॉर्म लेके साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको विड्रॉल हो जाएगा ऑनलाइन मोड में। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, जस्ट लाइक योर कैम्स क्या करके एक है, और के फिनकैट करके एक है। इसमें से आप डायरेक्ट जाके अगर रिडीम मारो, आपका म्यूचुअल फंड आराम से बंद हो सकता है। So this is our foundation. So our session is going to end, and I hope we you guys enjoyed my session. So that's it. And if any query, any doubt, please ask me any kinds of question, guys. Anyone have questions? Okay. Thank you. Thank you, guys.
Am I audible, sir? yes, Sajan. Good afternoon, sir. Good morning. बोलिए. Sir, if I want to know about that, if I have to invest in market, so what should be the government role in that? Sorry, actually, I can't get you. What you say? Can you please louder? If I have to invest in stock market, Yes. it's a market, so it's a very kind of risky kind of things. It's basically demand and kind of things, demand and Hmm. supply. And what should Hmm. be the government role in that kind of tax structure? Government, listen, SEBI itself is a government regulator, right? Just like RBI managing all the banking systems, SEBI is managing all the security system. So, what is the problem is that is the mindset that people right now, they are just what running from this security market due to particular risk. But nowadays we can say that our inflation rate is 6.25. That is अगर मैं एक साल में मेरा अभी 100 रुपया है ना, तो अगले साल को मेरा हो जाएगा 106 रुपया 25 पैसा. बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं सेविंग में रख रहा हूँ, मुझे कितना आ रहा है? 3.5%, मैक्स टू मैक्स 4% मैक्स. लेकिन फिर भी ना मुझे 3 रुपए का लॉस हो रहा है. क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन रेट को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा. इन्फ्लेशन रेट इतना आगे जा चुका है ना, आप देखो मतलब क्या भाव रेट कितना बढ़ रहा है. तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, जैसे कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट रेट ना थोड़ा ज्यादा मिल सके, ताकि आप फ्यूचर में ना थोड़ा आपको पैसे के लिए मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके अच्छे अच्छे लेवल के लिए. एंड ऑल यू रिस्क सेगमेंट, आपने मैंने तो आपको एक स्लाइड दिखाया कि 27% इसका रहता है पिछले 10 साल में, राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट करके इस इन्वेस्टमेंट के प्रक्रिया से इसमें से करना चाहिए, ताकि आप एक स्टॉक खरीदे खरीदे उसके बाद आप उसको 5 साल 10 साल तक होल्ड रखना चाहिए, ताकि आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिले. इसका मतलब नहीं है अगर आप जैसे कि 2019 में इन्वेस्ट किए, 2020 में मार्केट क्राइस हो गया, उसके बाद आप क्या किए, आपके फंड उठा के भाग गए. लेकिन वो फंड अगर आज के दिन में होता ना, मैं आपको बोला कि 2019 में एसबीआई का भाव चल रहा था 200 रुपया, आज के दिन में कितना, 800 रुपया, करीबन 400 टाइम्स रिटर्न वो दे रहा है. तो रिस्क इन द सेंस, मतलब ऐसा कुछ रिस्क नहीं. हाँ, रिस्क आप बोल सकते हो, आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, इफ यू आर प्रिफरिंग फॉर ट्रेडिंग, देन इट इज वेरी मच रिस्क. बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर इन्वेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग्स, देन आई कैन से दैट इट इज अ रिस्क सेगमेंट. या आपको थोड़ा वेट करना चाहिए एंड आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए. Am I clear, sir? Yes, sir. Very much clear. Thank you, sir. Yeah, welcome. I have one question. हेलो Yes, ma'am. सर, जैसे आजकल काफी ये स्टॉक मार्केट की जो काफी एप्स अवेलेबल हैं, जैसे 5 पैसा कैपिटल एंड ऑल, तो Yes, इज इट ma'am. सेफ टू इन्वेस्ट इन दैट? लिसन मैम, एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि आपको अभी आज के दिन में आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा ना, देन यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट. सो दीज ब्रोकर्स आर प्रोवाइडिंग यू वेरी मच डीमैट अकाउंट्स, जस्ट लाइक यू हैव मेंशन्ड दैट what grow and your Zerodha and your stock means 5 पैसा. सो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको यूज करना, मतलब ये सब डिस्काउंट ब्रोकर है. आपको अगर यूज करना है, आप थ्रू डायरेक्ट फुल टाइम ब्रोकर के पास जाके यूज मतलब एप्लीकेशन यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको इसमें भी करना है ना, तो थोड़ा, लेकिन ये सब उनका जो क्राइटेरिया है उनको पढ़ के आप यूज करो, क्योंकि बहुत सारे क्या एप्लीकेशन में क्राइटेरिया है कि आपको अभी आप अगर फंड विड्रॉल करोगे, उसके एक दिन के बाद आएगा, मतलब 2 दिन के बाद आएगा, ऐसे करके भी आज तक भी लोग मतलब परेशान हो रहे हैं. तो आप थोड़ा पढ़ के उनका टर्म कंडीशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू, यू कैन आल्सो गो फॉर इन्वेस्टमेंट. अदरवाइज अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है, आप फुल टाइम ब्रोकर से भी आपसे आप इन्वेस्ट भी इन्वेस्ट तो नहीं कहूंगा, म्यूचुअल मतलब आपको क्या डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो मैम.
ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੁੜੀ को शादी का बंगाल सके ऊपर नहीं करना है। क्या बोले? अगर हम ऑनलाइन अगर कर रहे हैं ट्रेडिंग तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना है ना। डीमैट अकाउंट तो आपको चाहिए मैम। डीमैट अकाउंट आपको चाहिए, जैसे कि बैंक में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको क्या सेविंग अकाउंट चाहिए। ऐसे कि आप अगर इसमें ओपन कर रहे हो ना, और ट्रांजैक्शन करने के लिए बोल रहे हो, ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट फॉर ऑल दैट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज यू कैन इवन ट्रेड। बिकॉज डीमैट अकाउंट क्या होता है मैम, कि ये आपका जो स्टॉक्स होता है ना, उसको एक डीमेटेरियलाइज, दैट इज सिक्योरिटी फॉर्म में स्टोर करके रखता है। और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से क्या होता है, आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन दोनों अकाउंट आपको चाहिए, इसलिए तो बोला है 3 in 1 अकाउंट। मतलब क्या होता है, आपका डीमैट, ट्रेडिंग एंड सेविंग तीनों एक साथ होना चाहिए, ताकि आप लिंक कर सकते हो एंड ट्रेड कर सकते हो एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Any more questions from students? Yes. Any questions, students? Sir, I have one more question. Yes, Am I- Sajan. Sir, if I have to invest, should I invest in government bond or securities or other private players securities? Hmm. It's more safer. No. Listen, Sajan, the problem is safer. Yes, government bond is still safer. That is, you can talk about your T-bills and also your CDs. But the problem is here, why should I am saying, and why should I am, conducting this program, that people are not aware for this particular program, that is security market investment. That's why I am here. That is awareness। आपको अभी डर लग रहा है कि हमको ये करना चाहिए, गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप इसमें भी इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है अच्छा होता है। और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो बोल रहे हो आप, टी बिल्स वगैरह हो गया, उसका कितना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, 8% या 9% ऐसे करके आपको Yes. इंटरेस्ट रहता है। लेकिन इसका क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पोर्टफोलियो आप सिक्योरिटी मार्केट में डालो। आपको जो सपोज 30% आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 10% आप गवर्नमेंट में डाले, 10% आप एफडी में डाले, बाकी जो 10% आपको बचा ना, वो इसमें डाल सकते हो, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका, जो बीट करेगा इन्फ्लेशन रेट को, कोई नहीं कर सकता है। और आज के दिन में क्या होता है कि एवरेज रिटर्न तो आपको 12-15% आ ही जाता है। और आप अगर एक वैलिड शेयर खरीद, देखिए आपका बैंक कहाँ पे है, बैंक अकाउंट मैं जान सकता हूँ? Sir, in SBI. एसबीआई में है। अगर Yes, आप एसबीआई में बैंक अकाउंट खोल पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव सच क्रेडिट, सच बिलीफ इन एसबीआई। अगर एसबीआई में बैंक अकाउंट आपके पास है, तो एसबीआई स्टॉक में इन्वेस्ट करना आपको क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि yes, भाई देखो, ब्रांच तो सही है ना, प्रोडक्ट भी सही है। तो अगर एसबीआई बैंक एस्टेब्लिश कर सकता है, तो एसबीआई बैंक का स्टॉक्स में आप क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? वो भी yes, sir. हो सकता है, ठीक है, वो भी वैलिड है, वो भी भरपाई कर सकता है, और आप लोग बिलीव भी कर सकते हो एसबीआई स्टॉक्स को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो वैलिड स्थिति में है, जो आज के दिन में अच्छा खासा कंपनीज हो गया है, एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया, आपको लगता है कि जो आपके डेली लाइफ में यूज कर रहे हो उसका क्या प्रोडक्ट्स, उसमें आप आराम से यूज कर सकते हो। इट इज अ गुड काइंड ऑफ रिटर्न, इट विल गिव यू सच इंटरेस्ट एंड रिटर्न। Thank you, sir. या There is one more question from students. यस। As Parvinder Kaur is writing, NSE और BSE में क्या डिफरेंस है और सिक्योर ज्यादा कौन है? देखिए मैम, एनएससी बीएससी दो है आपका जो एक्सचेंजेस होता है। मतलब अगर एक कंपनी, आप आज के दिन में एक कंपनी की है और उसको लिस्टेड करना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो एनएससी एंड बीएससी दोनों के साइड में आप जाके लिस्टेड कर सकते हो। एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और डिफरेंस इन द सेंस, मतलब बहुत कुछ कंपनी है जो दोनों में लिस्टेड है, बहुत कुछ कंपनी एक एनएससी में लिस्टेड है और बीएससी में लिस्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो आपका जो देखिए, जैसे कि मेरा एक नया कंपनी है, मेरे पास 3 क्वालिटी होना चाहिए
स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए। जैसे कि पहला कंडीशन हो गया, माई नेट वर्थ शुड बी 1 करोड़, माई नेट एसेट वैल्यू शुड बी 3 करोड़ एंड माई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी 5 करोड़। वो तीन अगर मेरे पास हो गया, देन मैं जाके आराम से लिस्टिंग कर सकता हूँ मेरा शेयर। सो डिफरेंस की ऐसा कुछ कुछ मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन बीएससी, वी कैन से कि बीएससी बहुत साल पुराना है, दैट इज 1875 से वो स्टार्ट हुआ था। वो एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी में ज्यादा लोग जाते हैं, बट करेंटली पीपल आर प्रिफरिंग एनएससी ऑल्सो, बट इट इज नॉट लाइक दैट इट इज गुड इट इज बैड। दोनों जस्ट लाइक दे आर ब्रदर्स, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर प्रिफरिंग कि पहले अगर मैं एनएससी में किया हूँ तो दूसरे में मैं बीएससी में करूंगा, अगर मैं बीएससी में कर दिया हूँ तो जाके एनएससी में करूंगा। और अभी जो कंपनी तो आ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं कि दोनों में जाके डायरेक्टली भी लिस्टेड हो रहे हैं। सो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्या करोगे, लिस्टेड करोगे आपके शेयर्स। Sir, one more question from Manas Kamboj. यस Sir, as a student, I have small savings monthly. I want to invest through SIPs. Should I invest in mutual fund SIPs or stock SIPs? मैम, इन केस ऑफ सेफेस्ट ऑप्शन आई विल प्रीफर म्यूचुअल फंड, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपका जो मतलब क्या है, पैसा होता है ना, वो प्रोफेशनली मैनेजर ही मैनेज करते हैं, प्रोफेशनली फंड मैनेजर्स। जस्ट लाइक आई एम पोर्टफोलियो मैनेजर, आई एम जस्ट मैनेजिंग योर फंड on behalf of you. I am managing, you are charging, or you are giving me your fund and I am managing। क्योंकि मैं प्रोफेशनली हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा सेफ है। लेकिन रिटर्न म्यूचुअल फंड में एज कंपेयर टू स्टॉक्स नहीं आता है, क्योंकि अगर आप कोई स्टॉक्स में 100 रुपया इन्वेस्ट किए और 110 हो गया, 120 हो गया, आपने बेच दिए, उसमें से आपको जितना प्रॉफिट आएगा ना, 100% प्रॉफिट आपका है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ना 100% प्रॉफिट आपका नहीं होता है, कुछ और लोग भी लेते हैं, क्योंकि वो आपके फंड मैनेज करते हैं। और ऐसा नहीं है एक ही शेयर्स में वो लगाते हैं, वो मतलब डाइवर्सिफाई करके अपने तरीके से लगाते हैं। एज अ वी कैन से एज अ इंटरेस्ट वाइज और व्हाट मतलब पोर्टफोलियो वाइज और रिटर्न वाइज स्टॉक्स इज वेरी गुड, बट आपको जो रिस्क सेगमेंट वाइज म्यूचुअल फंड इज ग्रेट है। म्यूचुअल फंड में इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता और इतना अनसर्टेनिटी नहीं होता कि आपका ये नीचे जाएगा। अगर किसी और स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो प्लीज he or she can ask the यस question. यस यस, आई थिंक ऑल हैव क्लियर्ड। Yes, sir. ओके ओके देन, So, या Hanji sir, so on behalf of Guru Ramdas College, Jalalabad, we really gladly appreciate your valuable contribution in making this event successful. We are very grateful that you shared your expertise and engaged our students. Really, it was very informative session. So once again, thank you for your time, effort, and expertise. We look forward to collaborate you again in the future. And at last, I would like to thank all the members of Team Advisors for organizing this wealth awareness program for our faculty and students. We look forward to work together again. So thank you, all the members of Team थैंक यू मैम, Advisors, and thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू मैम, Thank you so ऑल्सो द much. स्टूडेंट्स, या थैंक यू। Sir, sir, there is one question for me. यस यस यस, पूछो। सर, जो एक वो ना मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, वो जो एक पैनल बना के भेज देते हैं, मेरे को आया था, मेरे दोस्त ने रिडीम किया था एक पैनल, मतलब टाटा के नाम से था वो पैनल। वो लिंक आया था, उसमें इन्वेस्ट करो, मतलब वो प्लान होते हैं वैसे 600 रुपए का, 1200 रुपए का, वो ऐसे करके। तो वो सर मतलब वो मेरे दोस्त का रिटर्न आता रहा कि मतलब इतने दिनों बाद कि आपको इतने % रिटर्न मिलेगा, या ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो मैंने जब किया तो मेरा वो मतलब
मेरे बैंक अकाउंट में मतलब उसका जो था ना वो जो उन्होंने कहा था कितने % आपको इतने दिनों बाद आएगा, वो नहीं आया था। तो फिर थोड़े दिन बाद वो पैनल बंद हो गया, वो पैनल लिंक नहीं वही ओपन होता हो है। रहा था। तो वो वही- मतलब हुआ कि क्या हुआ। देखिए दोस्त, वो क्या होता है कि बहुत सारे फ्रॉड अभी भी है, इसीलिए तो सभी प्रोवाइड कर रहे हैं ना अवेयरनेस प्रोग्राम, की आपको थोड़ा पता चलना चाहिए कि किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर वही जो म्यूचुअल फंड स्लाइड्स हम पढ़ रहे थे ना, एक था कि सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों ये था? क्योंकि वो एक आपको एश्योरिटी देता है कि इसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। In spite of that, anything you are investing by the sake of what the people are saying about you, then I will definitely say that stay away from that people. And वो अगर बोलते हैं कि मैं आपको इतना दे दूंगा उतना दे दूंगा, तो खुद का क्यों नहीं कर रहे? सीरियस। सो दे शुड कंसर्न फॉर देयर सेल्फ रेदर यू। सो जो हो गया, एक्चुअली इट कैन बी बट द प्रॉब्लम इज कि आप अभी भी टाइम है कि आप खुद जानो, चीजें सीखो। और मैं मैम को भी, मतलब मैम के पास मेरा नंबर है, तो आप मेरा नंबर ले लो एनी टाइम। अगर आपको इस टॉपिक पे ऊपर थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बेटर सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी जो कोई भी आज बोल रहे हैं ना, आप उसको पूछो कि आर यू ए सभी रजिस्टर्ड गाय। इफ ओके देन यू शुड कंसल्ट विथ हिम, अदरवाइज नो, अब उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके आजकल बहुत लूट रहे हैं सारे लोग, ठीक है। थैंक यू हेलो। सर। या सो मैम, वी हाँ जी, शुड क्लोज द थैंक सेशन यू। आई थिंक। हाँ जी सर। So thank you once या again. Thank या you. थैंक यू, थैंक यू।